આજે 3 જાતના દર્દીઓ મારા સાથે છે. આમ બાળકોને દર્દીઓ કહે તો દર્દ થાય અંદરથી, પણ એને ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ વાળા ડાબી બાજુમાં છે. મારી જમણી બાજુમાં જેને કોરોનાના લીધે ડાયાબિટીસ થઈ ગયો હતો એવા જમણી બાજુમાં બેસ્યા છે. એની આગળ જે બહેનો છે એની પાછળ જે બેસા છે એને પહેલા ડાયાબિટીસ હતો અને ડાયાબિટીસ છતાંય એ કોરોનાથી મુક્ત થઈ ગયા. તો ડાયાબિટીસ અને કોરોના એનો શું કોરિલેશન છે અને કેવી રીતે એને તમે ડાયાબિટીસથી પણ મુક્ત થઈ શકો, નોન ડાયાબિટીક થઈ શકો, અને ડાયાબિટીસ છતાંય ડાયાબિટીસને તમે કોરોનાને મટાડી શકો, અને કોરોનાના લીધે પણ ડાયાબિટીસ થઈ ગયું છે એને પણ મટાડી શકો છો. સૌથી પહેલાં બાળકોથી શરૂઆત કરીએ. એક આ શું નામ છે ધાકડ બેટા તારું? મેહુલ ધાકર આ દીકરો છે. એ આખાના જે પાંદડા છે ને અર્ક મદાર એને કે શિવજી ભગવાન ઉપર આપણે મૂકીએ છીએ એ પગમાં લગાવી લો. એને ઉપરની જ્યાંથી दूध निकले से ना वो दूध वाला हिस्सा नीचे लगाना, पत्ते का ऊपर वाला हिस्सा तलवे की तरफ लगाना और ऐसे लगा करके और हाँ और ऐसे ये एक पग में फिर दूसरे पग में भी. ये इस लड़के ने कितने दिन प्रयोग किया? ये पहले दिन से ही मतलब बहुत असरकारी रहा. मैं घूमने जाता था तब ये डाल के चले जाता था, तब से मतलब मेरी शुगर डाउन हो जाती थी, मेरे को वापस घर आना पड़ता था. तो એને લગાતા તરત જ એનાથી અસર પડે. મેહુલ ધાકર ને આ મેહુલ ધાકરનો અદ્ભુત અનુભવ છે કે તરત એનાથી ડાયાબિટીસ કંટ્રોલ થઈ જાય અને અડધો કલાકમાં એનો પૂરો ફાયદો થાય. આ છોકરી બેઠી છે એને અડધો કલાક થઈ ગયું છે. હા મનની છે, એને તો ડાયાબિટીસ પહેલાંથી નોર્મલ થઈ ગઈ છે, ઇન્સ્યુલિન બંધ થઈ ગયું છે. અત્યારે એક કાઢવામાં આવશે એનો. આ થઈ ગયું પૂરું. હા એને કાઢી મૂકો, સાઈડમાં મૂકી દો. એ બીજા છોકરાને લગાડી દીધું છે અને અત્યારે એને પહેલાં તો મેહુલને કેટલું હતું ડાયાબિટીસ? હા 400 ऊपर रहती थी. 400 થી ઉપર. અને અત્યારે કેટલું રહેશે? यहाँ अभी थोड़ी कम हो गई, मतलब अभी इंसुलिन तो लग रहा है पर नॉर्मल आ रही है थोड़ी बहुत. कितनी? 102 आई थी और 102 આવી છે. અને 50 થી કેટલી ચાલુ છે અત્યારે ઇન્સ્યુલિન? 50. पहले अभी कितनी यूनिट चल रही है? अभी तो 10 यूनिट ही चल 10 50 થી 10 યુનિટ પર આવી ગયો છે. અને આ આગળ મન્નીને આપો તો મન્ની કેટલી લેતી હતી? मैं 14 लेती थी पहले. 14 થી અત્યારે એને ઇન્સ્યુલિન બંધ કરી દીધી છે. એ રિદ્ધિમાં તમારી? मेरी 18 17 या फिर 18 जाती थी और अब इसके बाद मेरी 3-4 दिनों से इंसुलिन पूरी बंद हो गई. એને બંધ છે અત્યારે. અને ખાવામાં શું ખાઓ છો? जो कैंटीन से मिलता है. क्या खाते हो? मेरा ब्रेकफास्ट में एप्पल और ड्राई फ्रूट्स रहता है और डिनर में वाटरमेलन या फिर पपाया रहता है और सूप के साथ. रोटी और दोपहर को रोटी और એક सब्जी. એન્ટી ડાયાબિટીક રોટી મિક્સ આટાની જે મલ્ટીગ્રેન આટાની રોટી આપીએ છીએ એને. હા ચલો આ તો નોન ડાયાબિટીક થઈ ગયા છે. એ બધાની ઓછી થઈ ગઈ. યુવરાજની કેટલી થઈ ગઈ? યુવરાજને આપો તો કેટલી થઈ ગઈ બેટા? कितनी हो गई है? मेरे को पहले 20 लगती थी, फिर उसके बाद मेरी 11 हुई, फिर उसके बाद मेरी कल 11 से 4 पे आ गई. 4 यूनिट થઈ ગઈ. ચલો ભાઈ હા અત્યારે બંધ થઈ જશે. હા आज अभी ये आखा का पत्ता लगाना. हाँ दिन भर 2 बार लगाना, सुबह शाम आधा घंटा. हाँ जी है ना? एकदम कंट्रोल આવી જશે. है ना? ये આખાનું પાન છે ને એનો उपयोग કરવું પડશે. आप ऐसा करना शाम को 1 घंटा लगाना. हो सकता है रात को लगा के सो तो ज़्यादा डाउन हो जाए, तो इसलिए 1 घंटा लगा के फिर हटा देना. है ना? सॉक्स के नीचे पहन लेना. और आज से ઇન્સ્યુલિન બંધ કરવી. એ તો ઇન્સ્યુલિન ડિપેન્ડન્ટ છે. અને અહીંયા આ જમણી બાજુમાં જે બેસેલા છે ને એનો એક એકનો તમે અનુભવ સાંભળશો. હા એક એક કરીને એને આપણે સાંભળીએ. અને 12 અભ્યાસ છે ડાયાબિટીસ માટે. આ 12 અભ્યાસ प्राणायाम तो करवा है. भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम,
અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઓમ, આ તો બધું કરવું જ છે. 12 આસનો અને એ પણ પ્રાણાયામ સાથે. અને એનાથી શું શું થયું, चलो एक एक थी सांभळिए छे, एक एक अपना अपना अनुभव भी कहते जाओ. मेरी 66 साल उम्र है. कोरोना से पहले मेरे को कभी भी डायबिटीज नहीं था, स्वस्थ था बिल्कुल. कोरोना कब हुआ? दिसंबर में, 11 दिसंबर को मेरे कोरोना हुआ. उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ. वहाँ पे मेरे को इंसुलिन 400 आने लग गई. कोरोना से भी ज्यादा मेरा दिमाग वो शुगर से ज्यादा खराब हो गया कि ये अचानक क्या हो गया, मेरे साथ क्या होगा. और वहाँ पे मुझे 6 यूनिट 4 बार इंसुलिन चालू कर दी. और उसके बाद छुट्टी के बाद मैं घर पे आके और मधुनाशिनी 15 दिन तक ली. और 15 दिन के बाद योग और प्राणायाम के बाद मेरी इंसुलिन और सब कुछ छूट गई और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ. और यहाँ पे आके मैंने 3 बार चेक कराई है, कोई दवाई नहीं लेता, अब बिल्कुल नॉर्मल है और बिल्कुल स्वस्थ हूँ. पूरी इंसुलिन बंद करी दी અને ડાયાબિટીસ નોર્મલ છે. ચલો મંડુકાસન આવી રીતે થાય. ચલો સભી મંડુકાસન કરો. પછી આવી રીતે શ્વાસને બહાર કાઢીને चलो इसको लास्ट उसको भाई को देना जो अभी उसने जिसने ठीक कर लिया. कोरोना थी शुगर थी, मंडूकासन, પછી આ શશકાसन. ओम बाबा जी, ओम ओम. मुझे दिसंबर में कोरोना हुआ था. मैं दिल्ली से आया हूँ. दिल्ली से आया हूँ. करो. हाँ. मुझे भी डॉक्टरों ने ये बोला था कि एडमिट हो जाओ. मैंने कहा बिल्कुल नहीं होना. मैंने अपना यही प्राणायाम और योग रखा शुरू और मेरा कोरोना बिल्कुल ठीक हो गया. लेकिन उसके बाद शुगर हो गई, फास्टिंग 148 तक पहुंच गई और उसके लिए भी दवाई के लिए बोला. मैंने कहा बिल्कुल ये भी नहीं लेनी. क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? नंद किशोर शर्मा. नंद किशोर शर्मा भाई है. फिर मैंने अपना प्राणायाम योग ये चालू रखे और मंडूकासन, शशाकासन ये शुरू किए. तो अब मुझे बिल्कुल यहाँ आकर के मधुगिरिट दी थी, लेकिन वो अब वो भी बंद है और केवल 85 पर आ गई मेरी शुगर. અત્યારે મધુનાશિની और મધુગ્રીટ एक અમે चीज और આપીએ है, છીએ, એની પણ જરૂરત नहीं. एक चीज और है कि मुझे पैर से लेकर घुटना, यहाँ कमर में और गर्दन में ये दर्द था, लेकिन यहाँ आकर के 4-5 दिन में ही सारे दर्द बिल्कुल गायब हो गए. ये लो આ और- બીજો લાભ થયો. મંડૂકાસન, શશકાસન, યોગ મુદ્રાસન અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. પદ્માસનમાં આગળ વળી જવાનું, જેનાથી થાય એ કરી લો. અને મોટી ઉંમરવાળા તો આ વક્રાસન કરો. હા, આ ભાઈને આપો પાછળ. એ તો એને તો ઓક્સિજન લેવલ એટલું થઈ ઓછું થઈ ગયું કે એ મરી જઈશ. स्वामी जी, હા, मैं ચલો संगमनेर વક્રાસન કરો महाराष्ट्र से અને हूँ. વચ્ચે અર્ધમત્સ્યેન્દ્રાસન કરો. જી. सितंबर 2020 लास्ट वीक में मुझे कोरोना हुआ था. कोरोना के पहले मैं बिल्कुल नॉन डायबिटिक था. हॉस्पिटल एडमिट हुआ तो चेक किया तो शुगर 300 350 निकला. तुरंत इंजेक्शन लगा दिया मुझे इंसुलिन का. ओ. और जब मैं डिस्चार्ज लेके आया तो घर पे ही मैं किट था तो चेक किया तो उस जो फास्टिंग का शुगर आता था वो 145 फास्टिंग वाला. और धीरे धीरे मैंने बाकी कोई दवाई नहीं ली. अपना जो पैकेज था ये प्राणायाम का, वो प्राणायाम आसन के साथ वो जस्ट आपने शुरू ही किया था, वो मैं 1.5-2 घंटे करता था. सदाबहार के फूल 5-6 खाता था सुबह. और मधुनाशिनी 15 दिन तक लिया और चेक किया तो पूरा मैं नॉन डायबिटिक हो गया. 20 या 30 दिन तक मुझे डायबिटीज हुआ था कोरोना के बाद. तो अभी बिल्कुल स्वस्थ हूँ. अब इस भाई को देना. ये मोटी बात है. स्वामी जी प्रणाम. स्वामी जी, मुझे जुलाई 2020 को कोरोना हुआ. मैं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में एडमिट हुआ. लगभग 10 दिन वहाँ रहा. तो उस दौरान एस्ट्रॉइड दिए गए, उसकी वजह से मेरे को शुगर हो गई. उससे पहले मेरे को कभी शुगर नहीं थी. शुगर થાય છે. उससे पहले मुझे कभी शुगर नहीं थी. ये तो हॉस्पिटल में स्टीरॉइड आपे वहाँ पे मेडिसिन दी गई शुगर की और इंसुलिन दी गया. मगर घर आके मैंने कोई भी किसी प्रकार की दवाई नहीं ली. मैं योग करता हूँ लगातार 3-4 साल से. तो योग मैंने किए, मैं अब ठीक हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ 7 दिन. आज 7वां दिन है, लास्ट दिन है. સારું કરી લીધું. જો बिल्कुल ठीक है. ગોમુખાસન કરો. ચલો. અને
આ બીજા આવ્યા છે જેને ડાયાબિટીસ છતાંય કોરોનાને હરાઈ નાખ્યો, એના આપો कि डायबिटीज था फिर भी कोरोना को हरा दिया। बस ये अभ्यास करते रहे, आज अभ्यास करवाना। हाँ। ओम बाबा जी, मैं इंदौर से आई हूँ। मैंने मेरे को 2019 में नवंबर में पता चला डायबिटीज का। फिर उसके बाद हमको 2 महीने बाद फिर मैंने सोचा कि अपने खान पान से और भस्त्रिका से, चूंकि मैं योग पे विश्वास करती हूँ, तो इससे कर लूंगी कंट्रोल। लेकिन उसके बाद मेरे को जॉइंटिस हो गया। तो जॉइंटिस होने के बाद दोनों अपोजिट, एक को मीठा अच्छा लगता, एक को कड़वा अच्छा लगता। तो अब हमको भी समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हम को इधर गठान डिटेक्ट हो गई, तो वो पता चला वो कैंसरस है। तो उसमें हमें ये टाइम आ गया था कोरोना का, मार्च। तो हमको कीमो दिया, तो कीमो से 14.5 से हीमोग्लोबिन 7 हो गया मेरा। तो हमको इतना इम्यून सिस्टम खराब हो गया मेरा कि मेरे को कोरोना ने, हॉस्पिटल गए, सीटी हुई तो कोरोना ने पकड़ लिया। तो कोरोना ने पकड़ा तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। अब उसके बाद सर्जरी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने खूब भस्त्रिका किया, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल 100 से कभी कम नहीं हुआ। कोरोना और मैंने 100 से कम आया ही नहीं। जी, जो कैंसर की दर्दी होने के बावजूद 100 से नीचे आवे ज नहीं, क्या बात है। और 200 पहले हमको दवाई दी तो 229 से नीचे नहीं आ रही थी, फास्टिंग भी। लेकिन अभी जब हम यहाँ आए तो 7 दिन में, कल तो हमारी 66 आ गई फास्टिंग। 66 आ गई जी। और अभी सब खा रहे हैं, सारे फल खा रहे हैं। और वहाँ डॉक्टर्स हमको बोलते थे ना आप मीठे फल खा सकते हो। यहाँ सेव भी खा रहे हैं। सेव तो रोज 2 मिल रहे हैं। 2 और पिंड खजूर मिल रहा है, क्योंकि हमको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है। अभी हीमोग्लोबिन कितना है? मिल रहा है। हीमोग्लोबिन कितना है? सारे जितने भी। और हीमोग्लोबिन कितना है? अभी हमने करवाया था तो 7.7 हो गया। अब बढ़ जाएगा, जी। गाजर भी, चुकंदर भी थोड़ा थोड़ा खाना। हाँ, वो तो दे रहे ABC। थोड़ा थोड़ा पिंड खजूर जी। तो ये ठीक कर लिया। चलो अब लेट करके एक राउंड और, इन दोनों बातों को और देना। कोरोना के बाद होने के बावजूद उसने हरा दिया, शुगर की बीमारी थी तो भी हरा दिया। जी बहन। मुझे शुगर था, लेकिन मैं पहले से ही प्राणायाम और योग शिक्षक ही हूँ मैं, तो मुझे सब आसन सब करने की आदत है। फिर भी पता नहीं बीच में कुछ गोलियों से मुझे शुगर हो गई थी, लेकिन बॉर्डर पर थी, क्योंकि मैं हमेशा प्राणायाम और वो सब आसन जो आपके है वो करती हूँ और आपको फॉलो भी करती हूँ। लेकिन ये आपका नया जो आसन और आसन के साथ प्राणायाम, ये जब से शुरू किया है तब से मुझे शुगर अभी बहुत बॉर्डर पर आ गई है। और अभी मुझे लगता है कि यहाँ से जाने के बाद मेरी खत्म ही हो जाएगी। और कोरोना कितने दिन रहा? कोरोना 2-4 दिन ही रहा। मैंने प्राणायाम शुरू कर दिया था, क्योंकि ज्यादा खांसी और सर्दी नहीं थी मुझे। एक दिन टेम्परेचर आ गया, थोड़ा वीकनेस। और જે પ્રાણાયામ યોગ કરે ને એનો 1-2-3 દિવસમાં જો કોરોના નેગેટિવ આવી જાય, આવી વાત છે। योग लगातार चालू ही था और इसके वास्ते मुझे दवाखाने में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और मेरा मधुनाशिनी और मधुग्रीड से ही बाकी दूसरी कुछ दवाई नहीं लिया ऐसा। और कोरोनिल तो मैंने जब से निकली है तब से ही मंगा ली थी। वहाँ हमारे यहाँ संगमनेर में आती नहीं जल्दी, तो मैंने मंगा ली थी चलो दूसरी बहन को देना। तो संक्रमित થઈ ગયા, તરત એને સારું કરી લીધો। ओम स्वामी जी, आपको शत प्रणाम। उत्तान पादासन। मुझे जुलाई में कोरोना हुआ था, लेकिन कोरोना ज़्यादा दिन नहीं रहा, 2 या 3 दिन ही रहा। मैंने सुबह शाम दोनों टाइम 15 दिन तक आपका प्राणायाम करा। उसके बाद मैं लगातार ही आपका प्राणायाम और सारे आसन कर रही हूँ। मेरे को इस तरह कोई भी तकलीफ नहीं है, ना शुगर है, ना BP है, ना थायराइड है।
कोई भी बीमारी नहीं है। जो चालो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंदासन, चलो करो। ये तो बड़ी उम्र वाले भी कर सकते हैं। माता जी ने कोरोना थयु अने એને મટાડી દીધું। ચલો કરો આ પાદાંગુષ્ઠ નાસા સ્પર્શાસન કરો। આ બધાથી નહીં થાય તો તમે પવન મુક્તાસન કરી લો। બાળકોને તો આ શીર્ષાસન, સર્વાંગાસન, હલાસન પણ થાય છે, બાળકો આ કરી લે। અને જે સમર્થ છે એ તો શીર્ષાસન પણ કરી લેજો ને બાકીના અનુલોમ વિલોમ કરો। ચલો અનુલોમ વિલોમ કરો સાહેબ। જે બાળકો છે એ તો શીર્ષાસન પણ કરી શકે છે, અભ્યાસથી અભ્યાસ કરવું પડે। ઊંડા ઊંડા શ્વાસ અને ડીપ બ્રીધિંગ થી સુગર સારી થાય। તો સુગરનો ડબલ એટેક, કોઈને ટાઈપ 1 કોઈને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ છે અને એને પછી કોરોના થઈ જાય તો જીવનમાં સંકટ આવી શકે છે। ઘણા બધાને સુગર છે, ટાઈપ 1 ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ છે, એ કોરોનાનો અટેક થાય તો કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરવાનું। ઘણા બધાને કોરોનાને લીધે સુગર થઈ ગયું છે તો એ પોતાને કેવી રીતે પ્રોટેક્ટ કરે, તો એના માટે એક જ ઉપાય છે યોગ। સુગરનો ડબલ એટેક, સુગરનો ડબલ એટેક પછી કોરોનાનો અટેક, પોતાને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે યોગ આયુર્વેદ એકમાત્ર છે। આ ભસ્ત્રિકા 5 મિનિટ આ કરજો, પછી આ કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ, અગ્નિસાદ।
એનો જ્યુસ કાઢીને સવારે પી લેવાનો. અને જેને બહુ ડાયાબિટીસ જો મધુગ્રીટ ભૂખ્યા પેટે મધુનાશિની અને જમ્યા પછી મધુગ્રીટ એ લઈ લેજો. એકદમ ઇન્સ્યુલિન એક્ટિવેટ થઈ જશે, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં આવી જશે. જેને બહુ જ વીકનેસ હોય તો વીકનેસ માટે અશ્વગંધા, શતાવર, સફેદ મૂસલી એ તો દરરોજ હું વાત કરું છું. એમાં વિદારીકંદ, વરાહીકંદ, કોચના અશ્વગંધા, શતાવર, કોચના બીજ સાથે વિદારીકંદ, વરાહીકંદ, બલા બીજ અને જેને જેવું ઉપલબ્ધ હો જાય થઈ જાય, રિદ્ધિ, વૃદ્ધિ, જીવક, ઋષભક, મેદા, મહામેદા, કાકોરી, ક્ષીર કાકોરી, એનો બધાનો ચૂર્ણ કરીને અમે ઇમ્યુનોગ્રીડ ચૂર્ણ આપીએ છીએ. એનો અદ્ભુત લાભ છે. જેને ડાયાબિટીસ હોય ને એનો વીકનેસ આવે, આ ઇમ્યુનોગ્રીડ ચૂર્ણ ખાઈ લેવાનું, અષ્ટવર્ગ ચૂર્ણ ખાઈ લેવાનું, અશ્વગંધા, શતાવર, સફેદ મૂસલી, કોચ બીજના ચૂર્ણ ખાઈ લેવાનું, વિદારીકંદ, વરાહીકંદનું ચૂર્ણ ખાઈ લેવાનું, ગળો લઈ લેવાની, એનાથી વીકનેસ દૂર થાય. દૂધમાં હળદર, શિલાજીત લઈ લેવાનો, એનાથી વીકનેસ દૂર થાય. હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો વીટગ્રાસ, એલોવેરા, વીટગ્રાસ, એલોવેરાથી હિમોગ્લોબિન વધે છે. અને દાડમ, ગાજર, ચુકંદર, એપલ જેટલી અનુકૂળતા હોય એટલું લઈ લેવાનું, એનાથી હિમોગ્લોબિન વધે છે. આ અનુલોમ વિલોમ કરજો. પછી ભ્રામરી ઉદ્ગીત. પાંચ સાત બાર આ ભ્રામરી પછી ઉદ્ગીત. પછી મૌન થઈને ઓંકારનું, ગાયત્રીનું ધ્યાન કરવાનું. તો મૌન ધ્યાન એટલે ભ્રામરી ઉદ્ગીત આ બધું કરવાથી, ઓંકાર ધ્યાન કરવાથી તનની શક્તિ, મનની શાંતિ મળે, બધા રોગો મળે. આવી રીતે દરરોજ યોગ કરજો. યોગ સાથે આયુર્વેદનો પ્રયોગ કરજો, થોડી પરેજી પાળજો, તો તમને કઈ જાતનો પણ ટાઈપ 1, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ હોય અને કોરોનાને લીધે ડાયાબિટીસ થઈ ગઈ હોય, આમ ડાયાબિટીસ છતાંય તમે કોરોનાને મટાડી શકો છો અને પોતાના જીવનને બચાવી શકો છો. એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.